A very good morning, everybody. On behalf of BSc, it gives me, Manasi, great pleasure in extending a hearty welcome to all of you, especially the honorable guests and invitees for this very special event. Ringing of the opening bell by Honorable Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Government of India, Shri Arjun Meghwal. Welcome, sir. I also welcome Shri Sudhakar Rao, Chairman BSc, and Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO BSc. And now, Shri Sudhakar Rao, BSc Chairman, will welcome Shri Arjun Meghwal, Honorable Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, with a bouquet of flowers. Sir, kindly accept this as a token of reverence and appreciation. And as per the Indian tradition, the inauguration will be done by lighting the auspicious ceremonial lamp. I request the guests and dignitaries to kindly do the honors. Shri Arjun Meghwal, Honorable Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Government of India, Shri Sudhakar Rao, Chairman BSc, and Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO BSc. Deepena lokana jayati, deepas tejomayaha smritaha, chaturvarga pradodipan, tasmat deep yajet priye. This couplet in Sanskrit translates, the lamp is luminous, its radiance grants victory, its brightness imparts dharma, artha, kama and moksha, that is righteousness, prosperity, pleasure, and finally emancipation. This, ladies and gentlemen, is the significance of lighting a lamp, and hence a lamp should be lit. Lamp, as we know, is also a symbol of knowledge. One picture for memory's sake. These are special memories to be treasured. Thank you. The lamp being lit, the function has been inaugurated. I request the esteemed guests and dignitaries to occupy their seats on the dais. Ladies and gentlemen, as we know, ringing of the gong signifies the beginning of trade on the stock market across the nation for that particular day. And today, I call upon Shri Sudhakar Rao, Chairman BSc, for the welcome address of this special occasion. Sir. A very good morning to all of you. I hope you all had a very good Dashara and Vijayadashmi, and in anticipation of coming Deepavali, let me wish you all a very happy Deepavali in advance. Honorable Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Arjun Meghwal ji, Ashish, my colleagues from BSc, and the larger BSc family of brokers, friends. Day of honor for us that the Minister of State has chosen to come to BSc. Actually, this is his first visit to the Bombay Stock Exchange. And as we were coming up, Ashish was telling him that the same arena where we are all gathered today, just a few years ago, would be so noisy and boisterous by now, when the trading was actually happening without technology being around, that you could hear the noise even up to church gate. So I was just trying to tell him that technology has now quietened this place, but you get to see similar noise and shouting on TV programs these days. When any
यहाँ एक माइक है शायद नहीं. Sir, I wanted to just mention to you that apart from the usual work that the BSc does, our priorities currently are being very closely coordinated with the kind of priorities that the Government of India has taken in the Ministry of Finance. For example, we have a platform for SME units, the small and medium enterprises. It's a platform which started off with some skepticism but has become a very successful platform with almost 150 companies now on it, and several of them having graduated onto the regular BSc platform. And actually it works in synergy with the Make in India program, because we give them an opportunity to raise capital and resources for their enterprise. Similarly, the BSc Institute is closely involved with skill formation. We have been training a large number of people in the banking and financial sector skills, and that too without any governmental assistance so far, because we have got into the field very early on in skill formation. But the piece that really requires your special attention, the initiative that requires your special attention is, of course, what we are trying to set up in the gift city in Ahmedabad, which is the international exchange, where BSc has taken the lead. And we have actually located space for it. We have got a large number of brokers. We have addressed them. We have done marketing there. A large number of brokers have agreed and given to us in writing that they will be joining the exchange. We have opened 2 companies there, one for the clearing corporation and one for the exchange itself. And we are expecting, there are several regulatory issues that need to be tied up still, because it is a major new initiative. But we think it's a very important initiative because it will bring us at par with the international bourses, international exchanges. And I think in an economy which is headed towards major reforms, GST being one of them, if we successfully manage to establish international exchanges, competing with Singapore, Dubai and other venues, I think we would really have arrived in the financial sector in the global economy. And for this, I know that you're already involved. I know that you have already been sort of reviewing this matter time and again. We were hoping that somewhere as early as in January, when the Vibrant Gujarat event takes place, we could bring in the opening of this also. And I think the financial community here has its full support for this. So we need your sort of close monitoring and your push whenever necessary to get things done, whatever is required, because there are a few loose ends which are there. However, this morning is special because this is your first visit to BSc and you will be ringing in the bell this morning. So let me welcome you on behalf of the entire BSc community to the Bombay Stock Exchange. By the way, I don't know how many of you know that the Honorable Minister is a former civil servant. He is a member of the Indian Administrative Service. As he said when I received him, he said, "Acha, ek hi biradri ke hain bol ke." So I welcome him to the BSc special. All right, time now almost to ring the gong, which will mark the official beginning of the trading time on the stock market for the country. 5, 4, 3, 2, and 1. So let the day bring good fortune to one and all. A memorable photograph next to the gong. The market is up by 155 points. Thank you for that enthusiastic and spontaneous cheer. A real lucky
strike. So may I now request the Honorable Union Minister. All right. So anyway, the morning bell has been rung. We have opened the day's proceedings, the first time that Mr. Meghwal was doing. But I was just telling you that he is also a civil servant who on retirement has joined politics. Not many civil servants turned politics have been very successful in politics, because clearly politics is a far more difficult arena to handle than the bureaucracy. But he has managed this extremely well. He got elected in 2009 when the tide was against his party. And of course, he obviously got elected in 2014 when the tide was very much with his party. So let me also wish you then, sir, having had a very successful career as a civil servant, that you have even a more successful career as a politician, as a minister, and that your career graph will continue to grow. Thank you very much for being with us. Thank you. Thank you, sir. I now request the Honorable Union Minister to kindly unveil the white paper titled "The Future is Now, BSc International Exchange, Accelerating India's IFSC Mission." Ladies and gentlemen, the paper details India's IFSC mission and BSc International Exchange vision to accelerate it by providing state-of-the-art marketplace infrastructure. That is the IFSC BSc white paper. Time now to launch the BSc International Exchange website. I would again request the Honorable Union Minister to kindly do the honors by pressing the button on this clicker, sir. The BSc INX website will now be launched. Thank you for that loud round of applause. Ladies and gentlemen, we are indeed very, very fortunate to have with us Shri Arjun Meghwal, Honorable Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Government of India. He represents the Bikaner parliamentary constituency in the Lok Sabha. Before joining active politics, he was a career bureaucrat and served as an IAS officer in the state of Rajasthan. He took voluntary retirement to contest elections for the 15th Lok Sabha and won. In the 15th Lok Sabha, he earned the distinction of having an attendance of 99%. In addition, he tabled the highest number of parliamentary questions, participated in maximum number of parliamentary debates, special mentions, and moved highest number of private member bills. In recognition of his active contribution in the parliament, he was conferred Sansad Ratna Award and Sansad Maharatna Award. This felicitation was by Prime Point Foundation, which is an organization that honors top-performing parliamentarians in India. This idea is the brainchild of former President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, executed by this organization. Honorable Shri Meghwal was re-elected from the same constituency in 2014 to the 16th Lok Sabha. In the current Lok Sabha, before being appointed as Minister of State, he held the unique distinction of being appointed as the Chief Whip of the BJP Parliamentary Party in the Lok Sabha and Chairperson of the House Committee Lok Sabha.
He has keen interest in upliftment of people belonging to weaker and downtrodden sections of the society, loves to read, has been very active in promoting the Rajasthani language and its recognition as an official language in the 8th schedule of the Constitution. As a hobby, he loves to sing devotional songs, play badminton, and walk. Holds a master's degree in arts, is a law graduate, and has earned an MBA from the Philippines University. I invite Shri Arjun Meghwal, Honorable Minister of State for Finance and Corporate Affairs, to deliver his special address. Sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आपके सबके? ठीक है। मैं राजस्थान से आता हूं तो राम राम सा भी कर लूं क्या? राम राम सा के राजस्थानी दिख भी रहे हैं ना भाई साहब। मंच पर सुधाकर राव साहब, चेयरमैन बीएससी, और सीईओ बीएससी आशीष कुमार चौहान साहब। ये बहुत ऐतिहासिक हॉल है और इस हॉल में आप सब बैठे हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको कहना चाहूँगा सुबह सुबह। देखिए, मैंने राजस्थान स्टेट में एज ए आईएएस ऑफिसर काम किया। मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम किया। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते थे तो कई बार इक्विटी की प्रॉब्लम आती थी। लोन part is to be provided by the financial institutions, but the equity part has to managed by entrepreneur himself. And at that time, I feel and I felt that it was a very difficult task for a new coming entrepreneur, rather a second generation entrepreneur. अब वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था और उसके पास इक्विटी नहीं थी। तो हम कई बार सोचते थे इक्विटी कहाँ से मिल सकती है। तो हमें उस समय कुछ लोग बताते थे कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इक्विटी दे सकता है फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर के लिए। बाद में मैंने इस पे स्टडी किया तो मैंने पाया कि इस देश में जो जनरेशन टू जनरेशन एंटरप्रेन्योर बने उसमें घरानों का हाथ हो सकता है। कोई बिड़ला घराना में जन्म गया, जन्मते एंटरप्रेन्योर बन गया। क्या क्या चाहिए एंटरप्रेन्योर के लिए? आपको अगर मैं बात करूं तो जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें लोग कहते हैं वी नीड ए लैंड। इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट पार्ट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड, लेबर, कैपिटल ये बाय बर्थ भी हो सकता है, ये बाय बर्थ भी हो सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ये बाय बर्थ नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योरशिप इज टू बी एक्वायर। अब वो फर्स्ट जनरेशन का एंटरप्रेन्योर, उसके मन में मैं कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन ही डजंट हैव ए प्रॉपर कैपिटल, एडवोकेट कैपिटल। तो उसको क्या चाहिए? इक्विटी कौन देगा? तो मुझे आज कहने में बहुत प्रसन्नता है और मैं गर्व भी महसूस करता हूं कि इस देश में जो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर बने उसमें स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है। द मेजर कंट्रीब्यूशन। और अगर इसी लाइन पे आप ज्यादा चलते तो बहुत अच्छा काम होता, लेकिन बीच बीच में भाई जी सट्टे में चला गया आप थोड़ा थोड़ा। यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? हाँ, नहीं थे तो जानो, बाकी कई जना कौन जाने नहीं।
एक शब्द था, बिड़ला जी, घनश्याम दास जी बिड़ला, बेसिकली ही वाज फ्रॉम पिलानी, राजस्थान. ही ट्रेवल्ड फ्रॉम पिलानी टू कलकत्ता. तो जो बहुत बड़ा उनका साम्राज्य हुआ, तो उन्होंने कहा साहब एक फॉरेनर आपसे एक शब्द सीखने आया है. तो बोला क्या शब्द है भाई? ऐसा क्या शब्द है जो हमारा बिड़ला साम्राज्य में चलता है और फॉरेनर को पता नहीं है? कि साहब ये वो शब्द है, वो कहते हैं पढ़ता नहीं खावे. ये पढ़ता क्या शब्द है? पढ़ता, ये बिड़ला टर्मिनोलॉजी में महत्वपूर्ण शब्द था. जब कोई काम होने लगता था, एमयू नजदीक पहुंचता था, तो घनश्याम दास जी बिड़ला आते, सॉरी पढ़ता नहीं खाता, पढ़ता को नहीं खावे. तो वो जो फॉरेनर्स थे या और बड़े लोग, बड़ी ये पढ़ता क्या है, व्हाट इज दिस पढ़ता? बाकी पढ़ता नहीं खाता, पढ़ता नहीं है, ये तो समझ में आता है. भाई पढ़ता है क्या, व्हाट इज दिस पढ़ता? ये पढ़ता, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट राजस्थानी वर्ड, and you can say a Marwadi word. Some people must be belongs from Marwadi community here. You must be knowing पढ़ता. लेकिन उसको समझने के लिए वहां से लोग आए. फिर बिड़ला जी ने कहा भी ऐसे एक दिन में नहीं समझाऊंगा, आपको एक सप्ताह रहना पड़ेगा तो आपको पढ़ता समझा दूंगा. तो उनके साथ वो रहा, राइटर, बुक लिख रहा था बिड़ला जी पे. और उसने जब बुक लिख रहा था, उन्होंने कहा कुछ मुझे आपके पुराने, जो आपका कहाँ से आप शुरू की, आपकी क्या भूमिका थी, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी थी, कैसे आप इतने आगे बढ़े, आपके पास क्या लैंड, लेबर, कैपिटल क्या था? कुछ नहीं था. तो हमारे एक राजस्थान में, पर्टिकुलर इन बीकानेर में, एक कवि हुए हैं, पोइट हुए हैं, जिनका नाम है अनाराम सुदामा. उन्होंने बिड़ला जी पे एक पुस्तक लिखी थी, मेवेरा रूख. ये टिपिकल वर्ड है अगेन मारवाड़ी, कि मारवाड़ में एक आदमी जन्मा, डेजर्ट में जन्मा, और उसने पिलानी से ट्रेवल किया कलकत्ता तक, और अंग्रेजों के बहुत नजदीक पहुंच करके उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया. लैंड, लेबर, कैपिटल उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था? एंटरप्रेन्योर स्किल. एंटरप्रेन्योर स्किल के कारण वो इतना बड़ा आदमी बना. और 7 दिन जब वो फॉरेनर रहा उनके पास, तब वो पढ़ता समझ पाया कि पढ़ता क्या होता है. तो जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते थे, तब हम भी कहते थे कि दो यू आर ए फर्स्ट टाइमर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, एंड यू आर विलिंग टू बी एंटरप्रेन्योर, लेकिन आपके पास इक्विटी कहां है? अगर इक्विटी नहीं होगी तो लोन देना हमें पड़ता नहीं खाता. तो ये इक्विटी वाला काम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उपलब्ध कराता था, कैपिटल मार्केट में इसका बड़ा काम था. इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, मुझे अच्छा लगेगा. और मिनिस्ट्री के रूप में मुझे क्या करना है, यू गिव मी सम इनपुट. देखिए, मैं एकदम देसी आदमी हूं. अभी सुधाकर राव साहब क्या कह रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्सेस नहीं होते हैं, ऐसा कह रहे थे ना? यही कह रहे थे ना? सुधाकर राव साहब के मन में भी पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार रहा होगा. आप थोड़ा अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढिए सुधाकर राव साहब, हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम में. पहले तो टिकट वाला काम भी बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आप थोड़ा स्टॉक मार्केट में जाकर के एक सट्टा लगाइए कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर उसके बाद थोड़ा आप ये करिए कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा. ये बड़ा काम है साहब. हमारी फलोदी जगह, यू नो फलोदी का जो सट्टा है वो इतना क्रेडिट ले चुका है. कई बार हमें लोग कहते हैं साहब वो फलोदी वाले सट्टे को पूछ लो, जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं. हमारे राज के पुरोहित साहब बैठे हैं, ये यहाँ के एमएलए भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के चीफ विप भी हैं महाराष्ट्र असेंबली में. तो मैंने इनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा फलोदी का सट्टा इतना कैसे फेमस हो गया? भाई सट्टा तो कई जगह लगता है, लेकिन उन्होंने कहा साहब फलोदी का सट्टा इसलिए फेमस हो गया कि फलोदी के लोग शुरुआती दौर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आकर के काम किया उन्होंने,
और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो शाख थी, उसके कारण फड़ौदी का सट्टा भी फेमस हुआ। तो ये शाख आपको भी मेंटेन रखनी है। तो सुधाकर जी, अगर अगली बार कहीं आपको टिकट चाहिए तो मुझे थोड़ा बताना, मैं आई विल ट्राई फॉर यू। लेकिन क्या है, देखिए मैं 2009 में मेरे पास 5-6 साल था आईएएस का, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये नहीं, ठीक नहीं है, डोंट ट्राई। अभी क्या, अभी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर ये पोस्ट हैं, आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक जा सकते हो, या कमिश्नर तक, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक तो पक्के जाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी इनकी इच्छा हो गई तो मैं देखता हूँ। हुआ क्या कि धर्मेंद्र जी, जो आपके बॉम्बे से ही हैं, वो बीकानेर से एमपी थे, सब जानते ही हो आप। तो वहाँ बड़ी दिक्कत हुई कि क्या करें, तो मुझे टिकट दे दी। मुझे दी टिकट तो मेरा भारतीय जनता पार्टी ने तो स्वागत किया ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं कैंडिडेट था। लेकिन जब मैं बीकानेर पहुंचा तो बीकानेर की कांग्रेस पार्टी ने भी मेरा स्वागत किया। आप सोचोगे कैसे किया, आप सोचोगे कैसे किया, ऐसे कैसे हुआ? क्या स्वागत किया उन्होंने? मेरा एक बड़ा एक बोर्ड लगाया, मेरी टाई दिखाई उन्होंने, टाई लगाता है जी कलेक्टर, जैसे आप लाल रंग की पहन रखे ना भाई साहब, आपने जो, आप पीछे 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 भाई साहब, क्या नाम आपका? हाँ मेहता जी, आप भी कहीं उधर, हमारे उधर के लगते हो, दिखता है। हाँ, तो इस ऐसी लाल रंग की टाई मेरी दिखाई, और बड़ी ऐसी बहुत सूट बूट में ड्रेस दिखाई मेरी, और मैं चूरू में कलेक्टर था तो ऐसी टाई पहनता भी था। तो उस पे बोर्ड पे लिखा, पहले एक्टर, समझ रहे हो ना, फिर कलेक्टर। ना एक्टर आया है ना कलेक्टर आएगा, क्योंकि कलेक्टर पर्ची दे के मिलता है और पर्दे में रहता है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जनहित में जारी विज्ञापन। अब मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने नहीं लगाया। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है कि ही मस्ट बी इगोइस्ट, ही मस्ट बी एरोगेंट, ये टाई लगाने वाला आदमी यहां डेजर्ट में जो जनता रहती है उसके साथ कैसे मिक्स होगा और कैसे इनका जनप्रतिनिधि कहलाएगा। तो मेरे दिमाग में यही आया, कभी मेरे ऊपर ये आरोप है। तो मैं वहां चला गया फील्ड में, होली के दिन थे, बहुत मेरा पार्टी के लोगों ने स्वागत किया। हमारे बीकानेर में एक कल्चर है, पाटा कल्चर जिसको बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है। पाटा होता है, उसमें सब लोग बैठते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग भी बैठते हैं और बहुत चर्चा करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब। वहाँ एक बड़ा चौक है, मोहता चौक। एक हमारे महाराजा गंगा सिंह जी हुए थे तो उनके बड़े फाइनेंसर, जैसे आप फाइनेंसर हैं, ऐसे राम गोपाल मोहता बहुत बड़े फाइनेंसर थे। हम डेजर्ट के थे लेकिन फिर भी बड़ा काम गंगा सिंह जी ने उस समय किया। तो उस चौक में, बड़ा ऐतिहासिक चौक, वहां मुझे ले गए और एक कसम खिलाई कि आज आपने साफा लगाया है, जीतने के बाद आप साफा नहीं उतारोगे। और दूसरी कि जीतने के बाद आप हमारे बीच में रहोगे। होता क्या कि ब्यूरोक्रेट वो एक हमेशा से एक दूसरा साफा, ये टर्बन नहीं, इसको टर्बन बोलते हैं, ये टर्बन नहीं, एक दूसरा टर्बन लगा के चलता। मैंने जो ब्यूरोक्रेट रहे और जो पॉलिटिक्स में टर्न हुए, उनका बिहेवियर चेक किया कि कहां गड़बड़ हुई। तो उन्होंने हमेशा ये समझा कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा नॉलेज वाले हम हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान हमें है। ये जो आदमी बैठा गांव का, इसको कोई ज्ञान नहीं है। इस वजह से उनके बीच में गैप हो गया। और जो ड्रेस थी, जो ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स में टर्न हुए, उन्होंने ड्रेस को चेंज नहीं किया। तो मैंने जब हेरोल्ड लॉस्की, यू अंडरस्टैंड द हेरोल्ड लॉस्की, ही वाज ए राइटर, पॉलिटिकल साइंस का एक राइटर था इंग्लैंड में, और इतना फेमस हुआ वो पॉलिटिकल बिहेवियर के कारण। उसने पहली बार कि पॉलिटिक्स में कौन आदमी सफल हो सकता है, उसने पॉलिटिकल बिहेवियर पढ़ाया कि आप जनता का बिहेवियर समझिए, बिहेवियर पढ़िए, जनता क्या चाहती है। तो मैंने बीकानेर के जनता का बिहेवियर पढ़ा
उन्होंने समझा कि मेरे जैसा आदमी चाहिए हमें। जैसे हम पगड़ी लगाते हैं, हम धोती पहनते हैं, हमारे जैसी सिंपल कोई ड्रेस पहनने वाला होना चाहिए। उसको ये नहीं रहना चाहिए कि कपड़े आज प्रेस हैं कि नहीं है। जैसा हमारा जैसा है, हमारे जैसी भाषा बोले, जैसी हम बोलते हैं, तो वो समझते हैं यार ये अपना आदमी है, ये हमारा प्रतिनिधि हो जाएगा। तो उसी मीटिंग में मेरे से एक कसम दिलाई कि आप साफा नहीं उतारोगे, टाई नहीं लगाओगे दोबारा अगर हम जीता देते हैं तो। मैंने कहा नहीं उतारेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आप क्या हमारे बीच में रहोगे, क्योंकि पहले हमने कई एमपी देखे हैं जीत के चले जाते हैं, रहते नहीं, हवा में उड़ने लग जाते हैं, उनके पंख आ जाते हैं बड़े बड़े, ऊपर देखते हैं नीचे जनता उनको छोटी छोटी लगती है। ये सब मोहता चौक में हमें लोगों ने समझाया, मेरे को पर्टिकुलरली। फिर मैंने मैनेजमेंट के 2 आदमी, आई एम फ्रॉम MBA, तो मैनेजमेंट के 2 लड़कियों को मैंने लगा के पब्लिक में भेजा कि क्या पब्लिक चाहती है। तो उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक एक चाहती है कि आपका एक सिस्टमेटिक ऑफिस होना चाहिए, पब्लिक एक चाहती है कि आपकी ड्रेस जो है वो एकदम कॉमन होनी चाहिए, पब्लिक एक चाहती है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कॉमन होनी चाहिए जो पब्लिक बोलती है। ये 4-5 चीजें उन लड़कियों ने मुझे समझाया। वो लड़कियां अब आजकल कहीं चली गई, कहीं और जगह काम कर रही है। मैंने यही सब किया। मैंने मेरा ऑफिस खोला जिसका नाम है सांसद सेवा केंद्र। इंडिया में कहीं इस तरह का ऑफिस नहीं है जैसा मैं ऑफिस चलाता हूँ। कोई एप्लीकेशन लेके आता है, आई रिसीव द एप्लीकेशन, मार्क इट, नंबर डालता हूँ। जब 3 महीने बाद भी, 4 महीने बाद भी दोबारा वो आता है कि मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर से बता देते हैं आपके एप्लीकेशन का ये हुआ, हमने फॉरवर्डेड टू कलेक्टर, फॉरवर्डेड टू IG, और उसमें अगर रिजल्ट आ गया है तो उसकी फाइल अलग होती है, उसमें बता देते हैं आपका रिजल्ट ये है, इसमें ये काम आपका हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। तो वो आदमी हमारे उस ऑफिस से, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आज यहाँ हूँ आपके यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन मेरा सांसद सेवा केंद्र काम कर रहा है। वहाँ आदमी जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं उस तारीख को हम आए थे क्या हुआ, वो पूछ रहे हैं। अगर कोई अड़चन हुई तो वहाँ हमारा जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, स्टाफ है, वो मुझे फ़ोन करके कहता है, और फ़ोन आजकल होते ही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अड़चन होती है। कोई चीफ सेक्रेटरी से बात करनी है, किसी मंत्री से बात करनी है, तो मैं यहाँ से अभी आपसे फ्री होकर बात करूँगा। तो मैं ये 24 आवर्स का जो ऑफिस चला रहा हूँ ना, इसलिए राव साहब मैं वहाँ बीकानेर में सफल हो गया। ये जो सांसद सेवा केंद्र है, एक बार पुरोहित जी आप भी देख के आइए। कल हमारे नाथ HRD के MoS थे महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने उस सांसद सेवा केंद्र को देखकर कहा ये तो नवाचार है। वाकई उसकी जो, जैसे मैं नोखा तहसील, उसकी एप्लीकेशन आती है तो नोखा के विधानसभा में रखता हूं मैं, लूणकरण सर की आई तो लूणकरण सर विधानसभा में रखता हूं, और वो जब तक वहां रखता हूं तब तक उसका कोई डिसीजन नहीं हो जाता। और जैसे डिसीजन होता है वो एप्लीकेशन चल जाती है हमारी फाइलों में, और बाद में 2 साल में बाद कोई देख सकता है कि MP ने क्या काम किया। तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे कहां से सीखी राव साहब, कहां से सीखी मैंने सुधाकर जी, ये मैंने ब्यूरोक्रेसी से ली। तो यहां मेरा ब्यूरोक्रेसी का फायदा उठाया। ऑफिस रन करना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहा हुआ उसके लिए ऑफिस रन करना, रिसीट, डिस्पैच, एप्लीकेशन को मेंटेन करना, फाइलिंग, ये सब डिफिकल्ट होता है। वो मैंने मेंटेन किया, और उसके बाद मैं बीकानेर जैसा बन गया, बीकानेर के लोगों जैसा बन गया। मैं जीता तो लोगों ने कहा यार पगड़ी तो उठाओ, लोग आपको अनपढ़ समझेंगे लोकसभा में कि ये तो इलिटरेट है। आप तो नहीं समझ रहे हो अनपढ़ मेरे को, लेकिन जब मैं बोलने लगा लोकसभा में तो इस पगड़ी के कारण ही बहुत से लोग मेरी साइट पे गए और उन्होंने कहा यार हम तो इसको अनपढ़ समझते, तो अनपढ़ तो नहीं है यार, ये तो IAS अफसर है। तो मेरे से मिले। पगड़ी का भी फायदा है मेरे को, पगड़ी का भी फायदा। मेरी साइकिल का भी जानते हो ना आप, है? हाँ, मेरे को बहुत से लोग साइकिल वाला भी कहते हैं। मैं कार्बन एमिशन कम करने के लिए साइकिल चला रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि जब मोदी जी बाहर जाते थे वो कहते थे कि इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन एमिशन, इंक्रीजिंग कार्बन एमिशन, तो उन्होंने कहा हम क्यों नहीं कर सकते इसको, सो मोटो क्यों नहीं कर सकते, इस वजह से कर रहा था। अब आपका एक विषय यहाँ आया है IFSC का, गिफ्ट सिटी तो बननी है, आप सब एग्री हैं, यस और नो? अरे एक विषय और आया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं मुंबई में गिफ्ट सिटी क्यों नहीं बनी, आपके मन में भी है क्या ये कुछ? यहाँ जगह नहीं मिल पाई है, इस वजह से ये मुंबई की बजाय पहले जगह मिल गई थी वहाँ अहमदाबाद में,
और मैं सुधाकर राव साहब को बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स बनाई है गिफ्ट सिटी में, जो रेगुलेटर की तरफ से और लोगों की तरफ से जो दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, उस टास्क फोर्स कमेटी का चेयरमैन मुझे ही बनाया है। तो मैंने 2 मीटिंगें ली है, रिव्यू मीटिंग ली है। एक बार तो आशीष जी भी प्रेजेंटेशन देने आए थे ना आप, और उस समय आरबीआई के लोग भी थे, सेबी के लोग भी थे, हमारी मिनिस्ट्री से भी थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी थे, सब थे, और गिफ्ट सिटी में जो सीईओ है शायद पांडे साहब, वो भी थे, उनका प्रेजेंटेशन भी हुआ। आपने आज जो प्रॉब्लम बताई है कि रेगुलेटर की कुछ प्रॉब्लम है, और आपने एक टारगेट हमें दिया है सुधाकर जी कि वाइब्रेंट गुजरात हो तब गिफ्ट सिटी का उद्घाटन हो। मैं आज यहाँ से इस मंच से, आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इस मंच से, इस ऐतिहासिक हॉल से कह रहा हूँ कि जब वाइब्रेंट गुजरात होगा तब गिफ्ट सिटी का उद्घाटन हो जाएगा। हमने इसी तरह का एक एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन उस गिफ्ट सिटी को कैसे हम और वाइब्रेंट बना सकें। आप कुछ बैंकर्स तो वहाँ आ गए हैं, कुछ और बैंकर्स आने हैं, कुछ आप लोगों को भी उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मदद करनी है, कुछ अगर राइटिंग में मुझे दे सकें आप, आपके बीएससी की तरफ से, आपकी तरफ से, या अभी नाश्ता कराओगे क्या चौहान साहब? प्रोग्राम है कहाँ पे? ऊपर मीटिंग भी है क्या? तो वहाँ भी आप मुझे कुछ आप राइटिंग में दे सकते हैं। अभी तो इसका मतलब 15-20 मिनट रखोगे आप मेरे को? आधे घंटा, 15-20 मिनट, आधे घंटा रखोगे। तो जिसके मन में भी जो आप गिफ्ट सिटी को कैसे, देखिए सिंगापुर गिफ्ट सिटी का अध्ययन भी है हमारे पास। मैं हांगकांग में भी एक बार गया था, तो मैंने देखा हांगकांग की गिफ्ट सिटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो इंडिया क्यों नहीं आगे जा सकता जी? इंडिया में ताकत नहीं है क्या? बताइए आप, है या नहीं है? और इंडिया में बहुत ताकत है, और हम नहीं कह रहे हैं। आजकल आपको पता है वेस्टर्न, ओबामा कह रहा नहीं, वेस्टर्न जितने थिंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड, जब से ग्रीस की प्रॉब्लम आई, जब से इंग्लैंड आपका यूरोपियन पार्लियामेंट से अलग हुआ, यूरोपियन कम्युनिटी से अलग हुआ, यूरो से अलग हुआ, तो इसकी इकोनॉमी को देख करके, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री को देख करके जो वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं आजकल? एक ही लाइन से कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं कि 21वीं सदी एशिया की होगी। 21वीं सदी एशिया की होगी, और एशिया में भी भारत की होगी। तब एशिया में भारत की होगी तो किसके आधार पे होगी? आपके आधार पे होगी। आप जो यहां कम्युनिटी बैठी है सामने, उनके आधार पे होगी। तो आप कुछ मदद करिए, कुछ हम मदद करें, और 21वीं सदी एशिया की हो और एशिया में भी भारत की हो। इस मंगल कामना के साथ मैं आज सुबह, आपने मुझे यहां बुला करके, और जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, ऐसे आपसे घंटी बजाते हैं मंदिर में, तो ये घंटी भी क्या होता है, मैं आपको एक नया एक और थॉट दे दूं, थोड़ा 2-4 मिनट का और समय बोल लूं क्या? देखिए हमारा ये जो शरीर है ना, ये जो आप बैठे हो बॉडी लेकर के, ये एक तो है आपकी फिजिकल बॉडी, एक है आपकी एस्ट्रल बॉडी, और एक है आपकी कैजुअल बॉडी। ये 3 शरीर का एक शरीर है। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं आपके पास, 5 आपकी कर्मेंद्रियां, और एक आपका मन है, और 5 आपके पास तत्व हैं शरीर में और प्रकृति में भी है। जैसे आपको पृथ्वी तत्व लेना है तो क्या लेंगे आप? पृथ्वी से उगने वाले अनाज, ये सब खाएंगे तो आपकी बॉडी में पृथ्वी तत्व आएगा। अगर आपको वायु तत्व लेना है, लेना ही पड़ेगा बॉडी में, बॉडी इज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, तो आप घूमेंगे, पार्क में जाएंगे, आप अपनी जहां सो रहे हैं उसकी खिड़की खुली रखेंगे, आपको वायु तत्व लेना ही पड़ेगा जी। नहीं लोगे तो आप नहीं रह सकते, जीवन नहीं रह सकता आपका, तो आपको वायु तत्व लेना पड़ता है। आपको जल तत्व लेना पड़ता है। रोज आप पानी पीते हो, लेकिन आप सोचते हो काय के लिए पी रहे हैं? अरे भाई इस प्रकृति में है जल तत्व है,
आपकी बॉडी प्रकृति है, तो आपको प्रकृति से एहसास कराने के लिए जल तत्व आपको लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप एहसास ही नहीं करते हो कि हम भी प्रकृति हैं। यह एहसास अग्नि तत्व आपको लेना ही पड़ता है किसी न किसी रूप में, लेकिन आकाश तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आकाश तत्व अभी मैं बोल रहा हूं, ये जो शब्द है ये सीधा टकराता आकाश से, ये मरता नहीं है शब्द, इट्स ए साइंस। परमहंस योगानंद जी ने एक बुक लिखी है, एन ऑटोबायोग्राफी है योगी। वो यहां कलकत्ता से चले गए थे कैलिफोर्निया और वहीं रहे और वेस्टर्न वर्ल्ड को समझाया कि ये तीन तरह के शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी। जब हम डेथ होती है हमारी तो एस्ट्रल बॉडी हमारे से बाहर निकलता है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी में ताकत नहीं है, इसलिए कैजुअल बॉडी वाहन का काम करता, हवाई जहाज का काम करता, उसमें बैठ करके एस्ट्रल बॉडी जाती है। तो ये जो आकाश तत्व है ये बोलने से आता है, आवाज से आता है। तो आज आपने मेरे से घंटी बजाई ना जोर से, ये सीधी आकाश में लगी है। आप यहां पे पांचों तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये किसी ने बीएससी में एक घंटी जिसने भी शुरू की, मुझे पता किसी ने शुरू की, उसको मैं सैल्यूट करता हूं कि आकाश तत्व की महत्ता उसने समझी होगी कभी, तब जाकर के घंटी शुरू की है। ये सिंपल काम नहीं है राव साहब, इट्स नॉट ए सिंपल काम, ये साइंस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कई दुविधाएं, झंझावत, हर्डल आने के बाद भी 141 साल का हो गया, कितने का हो गया, 141, और भी आगे जाए और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सिरमौर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी को आपने संबोधित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग interesting tidbits from your personal life with this august audience this morning, which I'm sure will be beneficial for all. There are several learnings from your valuable insights and your perspective. Thank you also for showering praises on BSc for playing a significant role in the first generation entrepreneurs as well. Thank you so much, sir. And now the vote of thanks will be proposed by Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO, BSc. Honorable Minister of State for Finance, Shri Arjun Ramji Meghwal, Shri respected Chairman BSc, Shri Sudhakar Raoji, Shri Rajji Purohit, MLA from this area, Shri Ashokji Kharatmal from Bharatiya Janata Party, BSc ex-President Srimati Dina Mehta, BSc broker, former forum presidents, current and past, and also Vice President, Shri Nisit Desai, eminent lawyer, Shri Arun Mehta ji, eminent chartered accountant, Shri Praveen Singhal ji, joint managing director of MCX, members of BSc, officers of BSc and subsidiary companies, prospective members of BSc who have come from, also some of them who have come from abroad, students, media personnel, friends, ladies and gentlemen. Thank you for coming today morning. I know how difficult it is to come in such traffic, but you have made it today, so I'm really honored to have you all here. It is an honor to have the Honorable Minister to visit BSc today and share his thoughts with us. It is his first visit to BSc, and I hope he'll keep on coming to BSc, sir. As BSc Chairman said, BSc priorities now are based on the priorities of the government. As decided by government, BSc has set up SME framework for entrepreneurs. I'm happy to report that more than 160 companies have already taken more than 1,200 crore rupees, sir, from the markets, and their market capitalization, their wealth, has gone up beyond 10,000 crore rupees. So we are basically supporting Stand Up India, Startup India, Make in India through our means, because you need, as you said, you need to have equity to get debt, and BSc is able to collect now debt for even as low as 50 lakh rupees for smallest entrepreneurs.
BSE is now the world's largest exchange with more than 5,300 companies listed on BSE. Nearest exchange is around half our size. BSE is also in top 10 in the world in terms of the market capitalization. And BSE is the fastest exchange in the world with 6 microsecond response time. In 1 second, there are 10 lakh microseconds, 1 million microseconds, and we give you response at 1,50,000th of a second. By the time you close and open your eyes, 50,000 orders go into BSE system. So that is the kind of system BSE has been able to create. BSE recently has created a bond system for distributing privately placed bonds and also publicly placed bonds. In last 2 months, sir, we have collected close to 70,000 crore rupees for Indian corporates. When London, in 2 months, sir, we have done this. When London Stock Exchange collects masala bond of 9,000 crore in 1 year, everyone starts going gaga, even Indian media. But when it comes to BSE, even brokers are not aware, media is not interested. So our priorities in media seem to be different. Our priorities in broking also seem to be different. You rightly said that we are more towards speculation, less towards investment. These are investment things people are not interested because of various reasons. But I think we'll have to come back. If you have to grow at the rate which we want to grow, 10% and beyond, we need to promote investments. And BSE is committed to promote investments in India. Even in foreign currency derivatives, BSE is now the largest exchange in terms of, on many days, in terms of US dollar, Indian rupee futures. And BSE in IPO, sir, also has a very large market share, more than 50%. In government disinvestments also, BSE has always given more than 50-60% market share. So always BSE has been with the government. And recently, in 2013, when Honorable Prime Minister, now Honorable Prime Minister, that time Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi came and sat on the same stage. He told me that you need to set up a new exchange in GIFT City, which will be BSE International Exchange. And that is why BSE board agreed to set up a new exchange in the GIFT City. In 2015, in Vibrant Gujarat, BSE signed an MOU with government of Gujarat to set up that exchange. And if all goes well, and with your blessings and guidance, sir, we will be able to launch it in the Vibrant Gujarat of 2017. So we need your support, guidance in this endeavor. BSE is going to invest more than 500 crore rupees in this endeavor over the next 3 years to make the GIFT City compete with Dubai, Singapore, Hong Kong, London, and New York as per your vision. And we are committed to fulfill your vision, sir. So we are really thankful to you for coming today morning and giving us this honor. We are also going with our IPO very soon. And so that is another project which is currently on. But I think GIFT City is going to be a very, very important milestone for India. Sir, we thank you for taking your time out this early morning for coming to BSE and honoring us. We have been immensely obliged with your gesture. Rajji Purohit, Ashokji Kharatmal, Arun Mehtaji, and all the other dignitaries who have come today, we are really thankful, and we are also thankful to media for making their presence felt today. So thank you very much for attending this event today. Thank you. Before we conclude, I request Chairman BSE, Shri Sudhakar Rao, to please present a memento to Honorable Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Government of India, as a token of gratitude for gracing this occasion. A symbolic gong has been given earlier, and now the symbolic bull by Shri Ashish Kumar Chauhan, MD CEO, BSE. On that note, ladies and gentlemen, we conclude this. Thank you so much, gentlemen. Please proceed for networking over tea, coffee, refreshments that have been arranged. This is Mansi taking a leave. Thank you and have a great day ahead.